Hallelujah. Hallelujah. Slam G. Amen. I want to thank God this morning मैं आज सुबह खुदाम का शुक्र करना चाहता हूँ for the privilege to be here once again. और उस शब्द का जो मुझे एक बार फिर आज इस जगह पर आने का हुआ है। And I bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के वसीला से आप तक सलाम लेकर आया हूँ। By the way, do I look good in this outfit? How do I look in this outfit? और आज कैसा आप सबको लग रहा है? Hallelujah. हालेलुया। I love being Pakistani. और मैं ये ड्रेस जो है वो बहुत पसंद करता हूँ। Hallelujah. I want to thank God for the life of the ministers of God. और इसके साथ साथ मैं खुदा के खादम का भी शुक्र करता हूँ। Starting from Senior Pastor Awa और सीनियर पास्टर अनवर का and his beautiful wife और उनकी खूबसूरत अहलिया का and all his brothers and in-laws and ministers of God और तमाम वो खादमीन जो यहाँ पर बैठे हैं and Pastor Rizwan और पास्टर रिजवान का and the team, the musical team. और वो सारी टीम जो उनके साथ है। Every one of you, I love you from the depth of my heart. God bless you in Jesus' मैं name. ये बताना चाहता हूँ कि मैं दिल की गहराइयों से आपसे मोहब्बत रखता हूँ। By the way, I want to thank God for this great interpreter. और आप वो मेरा भी शुक्र कर रहे हैं। He's made my job very easy. कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी जो जॉब है या मेरा काम है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। I appreciate and I love you in Jesus' name. और मैं यीशु की मोहब्बत में ये सब कुछ सहलाता हूँ। And I love every one of you too. और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। And God loves you more in Jesus' name. और यीशु के नाम में आप सबसे Shout hallelujah! Hallelujah! Those outside, if you can hear me, shout hallelujah! Amen. I want to share with you this morning from the Word of God. खुदा के कलाम में से जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है And I want to read from a passage we all know. और एक ऐसा बयान जिसको हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। I believe many of us can recite it often. और मैं ये भी मान रखता हूँ कि बहुत सारों को ये जुबानी भी याद है। So I want to bring a very simple message this morning. लिहाजा आज सुबह मैं बड़ा एक सादा सा पैगाम आप तक लेकर आया हूँ। Open with me to Psalm 23. मैं ज़बूर 23 को पढ़ने लगा हूँ। Psalm 23, ज़बूर 23 verse 1 only. सिर्फ एक ही आयत हम पढ़ेंगे। Psalm 23, verse 1. ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत। The Lord is my shepherd. खुदा मेरा चौपान है, I shall not want. मुझे कमी न होगी। The Lord is my shepherd. खुदा मेरा चौपान है, I shall not want. मुझे कमी न होगी। Thank you, Father, for your word. खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। I ask that you anoint these lips of clay. और खुदा दुआ करते हैं कि खुदा तू आज खुदा मस्सा दे। Let everyone under the sound of my voice खुदा वो लोग जो मेरी आवाज को सुनते हैं hear your word and your word alone. खुदा ये तेरा कलाम है और खुदा हमेशा कायम रहने वाला है। Speak to your people this morning. आज सुबह अपने लोगों से कलाम कर Let them not hear me, और खुदा कोई भी जरूरत हो वो पूरी कर but let them hear your voice. और खुदा तेरे कलाम को ये सुने। I believe your presence, Holy Spirit. और खुदा मैं ईमान रखता हूँ तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए। Minister to your people this morning. और खुदा देख उनकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर। Glorify Jesus in this place. इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ यीशु जलाल पाए। And I thank you for blessing your people this morning. और खुदा उन बरकत के लिए जो खुदा तेरे लोगों के ऊपर है शुक्रगुजार हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से ये दुआ मांगते Everybody हैं। says हर एक amen. शख्स कहे आमीन। Shout hallelujah. जोर से कहिए हालेलुया। Hallelujah. I want to speak to you this morning on word of God. The Lord is my shepherd. और आज सब जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद हमारा चौपान है। The Lord is my shepherd. The Bible says. कलाम फरमाता है कि वही हमारा चौपान है। Can you be able to say the Lord is my shepherd? क्या आप भी इस लायक हैं या काबिल हैं कि आप उसको ये कह सकें कि वो हमारा चौपान है? Notice it didn't say the Lord is our shepherd. ये नहीं कहा गया कि वो हमारा चौपान है। It didn't say the Lord is their shepherd. और ये भी नहीं कहा गया कि खुदा
if I am the sheep, अगर मैं भेड़ हूं तो, if you are the sheep, अगर आप भेड़ हैं तो, shepherd is not meant for goats. याद रखिए कि जुबान जो है उसके पास भेड़ होती है, Shepherd is not meant for sheep, for cows. और इसी तरह से जो जुबान है वो गाय बैलों का नहीं है। It is not meant for any other animal. ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी और जानवर का जुबान The है। shepherd is only meant for the sheep. इसका मतलब ये है कि जुबान जो है वो सिर्फ भेड़ों का ही है। So when the Bible says the Lord is my तो shepherd, जब कलाम ये फरमाता है कि खुदा मेरा जुबान है, when you say the Lord is my जब shepherd, आप ये कहते हैं कि खुदा मेरा जुबान है, that means you must be ready to be his sheep. तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसकी भेड़ होना जरूरी है। That means you must be ready to be a sheep. तो फिर जरूरी है कि आप ये कहलाएं कि आप उसकी भेड़ हैं। And I want to ask again, अब मैं फिर एक दफा कहना चाहता हूँ, what does it mean to be a sheep? अब भेड़ होने का क्या मतलब है? How can you know if you are his sheep? आप कैसे जानेंगे कि आप उसकी भेड़ हैं? How can you know if you qualify for him to be your shepherd? आप ये किस तरह से जानेंगे कि आप भेड़ होने के लायक हैं? And when you look at the sheep in the natural, अब जब आम भेड़ों को आप देखते हैं घूमते फिरते, there are certain things about the sheep अब बहुत सारी एक चंद एक बातें उनमें पाई जाती हैं, that tells you about the character of the sheep. और इस तरह से आप उनके किरदार की जाहिर होता है, किरदार जाहिर होता है, There are certain things about a sheep और बहुत सारी चीजें जाहिर होती हैं, that tells you about the character और वो चीजें जो है वो भेड़ के किरदार को जाहिर करती हैं of the sheep. और उस भेड़ को। That means when you are a sheep, और इसका मतलब ये है कि जब आप भेड़ हैं for you to be a sheep, और भेड़ होने के जगह पर, it also means those characteristics are also there. और इसका मतलब ये है कि फिर उस भेड़ के अंदर एक किरदार भी मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। He's doing a great job. Say it, he's doing a great job. It's okay. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I want to bring to your attention 4 things that the sheep मैं सबसे पहले जो बात एक लाना चाहता हूँ वो भेड़ की तरफ से है, वो ये है, There are 4 things I want to quickly mention about the sheep. और भेड़ के ताल्लुक से 4 चीजों को मैं बयान करूँगा। Number 1, the sheep has no natural sense of direction. और याद रखिए कि भेड़ की सबसे पहली बात जो होती है कि वो कुदरती तौर पर उसको रहनुमाई मिलती है या किस रुख की तरफ उसने जाना है, ये कुदरती तौर पर उसके अंदर मौजूद होती है। Hallelujah. हालेलुया। The sheep has no natural sense of direction. No natural sense of direction. It cannot direct itself. भेड़ जो है उसके अंदर कुदरती तौर पर कोई रहनुमाई करने वाली सलाहियत मौजूद नहीं होती। When you leave a sheep on its own, जब आप भेड़ को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, the sheep cannot go to a place by itself. और भेड़ जो है वो अपने आप से किसी मुकाम पर नहीं जा सकती। If you leave a sheep and ask the sheep to go to the pastor's house, trust me, अगर आप भेड़ को ये कहेंगे अरे भेड़ तो उस घर की तरफ चली जा, the sheep will miss its way and it will go all over the place. तो भेड़ जो है वो किसी और मुकाम की तरफ चली जाएगी, It cannot direct itself और वो अपने आप से खुद की मदद नहीं कर सकती उस जगह तक पहुंचने के लिए। by nature. और ये कुदरती तौर पर है, कुदरती तौर पर है, It doesn't know how to find an address of a place. और उसको ये मालूम नहीं होता कि वो अपनी जगह पर कैसे पहुंचे। Give a sheep your address और आप उसको जगह का भी तायन करके बताएं तो, and ask the sheep to come and visit you. और अगर आप भेड़ को कहेंगे मेरे पास आए और मेरे घर में आए मुझे मिले, He has your address, उसके पास आपका एड्रेस भी हो, but he cannot get to your address. और अगर वो ना पहुंच पाए He will miss his way. तो वो अपनी राह को खो देगी, He cannot find it himself. और वो खुद से अपने दौर से वो जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। Although he has the address, अगरचे उसके पास एड्रेस मौजूद है, the sheep is helpless when it comes to finding an address. तो लिहाजा भेड़ जो है वो बेबस है अपनी जगह पर या जिस एड्रेस जो उसको मिला है उस जगह पर जाने के लिए। So the sheep has no natural sense of direction. लिहाजा भेड़ के अंदर फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर कोई भी ऐसी रहनुमाई हासिल करने वाली सलाहियत मौजूद नहीं है। So you and I as a sheep, मैंने ये कहा कि आप ही भेड़ हैं, we have no sense of direction on our own. और हमारे अपने आप से हम किसी भी जगह
आपको जुबान मिल The जाए। greatest reason और एक असीम बरकत जो है, why the sheep needs the shepherd अब भेड़ को क्यों जुबान की जरूरत है? is because the shepherd knows the address. क्योंकि चरवाहा जो है वो एड्रेस को जानता है, The shepherd knows where to go. और चरवाहा जुबान जानता है कि किस जगह पर मुझे जाना है। So since the sheep doesn't know the way, जब भेड़ को इल्म नहीं है, all he needs to do is to follow the shepherd. अब उसको भेड़ को करने की जरूरत ये है वो जुबान की पैरवी करे। As the shepherd is going, he is following him. अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरफ जुबान चला जा रहा है उसी तरफ वो जाए, Wherever the shepherd goes, the sheep follows. और जिस तरफ की जुबान जाता है भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है, Wherever he goes to, the sheep comes. और जिस तरफ की जिस रुख पर वो जाता है भेड़ उसके पीछे जाती है। He follows without asking a question. और आपको सवाल करने की भी जरूरत नहीं होती, Because on his own, he doesn't know the way. क्योंकि वो खुद से तो नहीं जानती, But the shepherd knows the way. क्योंकि चरवाहा और जुबान जानता है कि वो किधर को जा रहा है। I've come to announce to you this morning. मैं आज सुबह आपको ये बताने के लिए आया हूं। Hallelujah. हालेलुया। I've come to announce to you this morning आज सुबह ये ऐलान करने के लिए आया, that you as a sheep, आप भेड़ें हैं, you don't know the way to heaven. आपको पता नहीं है कि आसमान पर कैसे जाना है, But the shepherd knows the way to heaven. लेकिन चरवाहा और जुबान जानता है कि आसमान पर कैसे जाना है। You don't know the way to God. आपको नहीं पता कि आप कैसे खुदा तक No पहुंचेंगे, matter how hard you try, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिशें आपने no की हैं, matter your religious practices, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मस्जिद रसूमात आपने अदा की हो, no matter how many times you pray a day, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दुआएं आपने की हो, no matter how many times you give offerings, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हदीये आपने दिए no हो, matter how many times you fast, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रोजे आपने रखे हो, no matter how many times you do righteous works or good works, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अच्छे नेकी के काम आपने किए हो, you are still a sheep आप फिर भी भेड़ हैं, and you cannot find God's address on your own. और आप अपने आप से उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। That is why you need a shepherd. लिहाजा आपको जुबान की जरूरत है, The shepherd will simply direct you. और जुबान ही आपकी रहनुमाई करेगा, He will lead you वो आपको लेकर चलेगा, to the presence of God. वो खुदा की हजूरी तक लेकर He जाएगा, will show you God's address. और वो आपको एक कंफर्म एड्रेस बताएगा, He will show you where to find God. और वो बताएगा कि खुदा को कैसे हासिल करना है, When you follow Him, और वो यही है, you will find God. और आप खुदा को ढूंढ लेंगे। Hallelujah. जोर से कहिए हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Number two reason why the sheep needs a shepherd. नंबर 2 जिस बात की ताल्लुक भेड़ के साथ है उसको जरूरत है। The sheep cannot cleanse itself. The sheep cannot cleanse or wash itself. अब भेड़ जो है वो अपने आप को धो नहीं सकती खुद। Almost every animal that God created, जितने भी जानवर खुदा ने तख्लीक किए बनाए, they have a way of cleansing themselves. और उनके अंदर खुद एक ऐसी कुव्वत मौजूद होती है कि जो उनके बदनों को साफ रखने की मदद देती है। When they become dirty by going around and lying down everywhere, और जब कभी भी उनके जिस्मों पर गंदगी आ जाती है जानवरों पर, every animal, no matter how small, they have a way of cleaning themselves up. चाहे कितना भी क्यों छोटा जानवर क्यों ना हो, वो अपने आप को साफ कर लेता है, Some of them, their mother has to clean them up. और इसलिए फिर वो जिस्म उसका साफ होता है। But the sheep लेकिन भेड़, cannot cleanse itself. लेकिन वो अपने आप को साफ नहीं कर सकती, Not even the mother can help him. और भी कोई उसकी माँ भी उसकी मदद नहीं कर सकती, Not even the father can help him. और भी कोई शख्स उसकी मदद नहीं कर सकता। It doesn't have any natural means of cleansing itself. और ये एक कुदरती तौर पर सलाहियत उसके अंदर नहीं पाई गई कि वो अपने आप को खुद साफ कर सके। When the hair and the wool begin to grow, और जब उसको परवरिश पाने में और बढ़ने में जिसमें मदद मिल सके, and they begin to lie down here and lie down there, और फिर वो ऐसे ही करती है, कभी इधर लेट जाती है, कभी उधर लेट जाती है, and they begin to go from place to place, और एक जगह पर जगह वो घूमती फिरती रहती है, their bodies pick up dirt. और फिर उसके बाद जो है उसका जिस्म जो है वो गंदगी आलूदा हो जाता है, And फट जाता है, of dirt stays on them. और फिर वो गंदगी उसके जिस्म पर कायम रहती है, And the skin or the wool
जिल्द होती है, बाकी तमाम अज़ा जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, and it continues to attract more death और इस तरह से और ज्यादा गंदगी जो है वो उसके इर्द गिर्द रहती है, until it becomes really dirty. और उस वक्त तक वो कि वो बहुत ही ज्यादा गंदी आपको नजर आए। But the unfortunate thing is that it can't even cleanse itself. लेकिन फिर भी बात जो समझने की वो ये है कि वो खुद अपने आप से अपने आप को साफ नहीं कर सकती। That's why the sheep needs a shepherd. लिहाजा इसीलिए उसको चौपान की जरूरत The है। shepherd will not come from time to time. और खुदा जो है वो ऐसा नहीं है, चौपान ऐसा नहीं है कि वो कोई खास वक्त पर उसके पास आए, I begin to cleanse and shave and wash the sheep, लेकिन वो आता है और उस भेड़ को साफ करता है so that the sheep becomes clean once again. ताकि फिर जो है वो एक दफा साफ हो जाए। Now you say the Lord is my shepherd. जब मैंने ये कहा कि खुदा आपका चौपान है, It means that you are the sheep. इसका मतलब ये है कि आप उसकी भेड़ हैं, And when you are the sheep, और अगर भेड़ हैं it means you cannot cleanse yourself. आप अपने आप को साफ खुद नहीं कर सकते। Do you know that by nature you are a sinner? आप ये भी जानते हैं कि मारूसी तौर पर आप गुनाहगार हैं। It doesn't matter whether you have sinned or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गुनाह किया है या नहीं किया, You are a sinner by nature. और मारूसी तौर पर गुनाह हमारे अंदर है और आप गुनाहगार हैं। As you begin to grow up, और जब आपकी परवरिश होती है, after you were born, जब आप पैदा होते हैं, you begin to pick up the sinfulness of your nature. और इस तरह की गुनाह आलूदा फितरत आपके अंदर पड़ी रहती है, Sin begin to cover all over you. और गुनाह जो है वो आपको चारों तरफ से घेरे रखता है। You are not a sinner because of those sins. आप गुनाहगार नहीं कि आपने वो गुनाह किए थे, But those sins are happening because sin is your nature. क्योंकि गुनाह जो है वो हमारी फितरत में है। So you are carrying this load of sin all around you. लिहाजा तमाम इस गुनाह आलूदा फितरत को आप लिए फिरते हैं। Your whole life is full of sin. आपकी पूरी जिंदगी गुनाह के अंदर है। It's very easy for you to commit sin. क्या इससे बड़ा आसान है कि आप इसमें से निकल आए? You don't have to struggle to commit sin. और आपको जरूरत है जद्दोजहद करने की कि आप गुनाह करें। When children are growing up, जब बच्चे भी परवरिश पाते हैं, their parents have to teach them how to do good things. इसी तरह से बड़े उनको तरबियत देते हैं कि अच्छा करना है और क्या नहीं करना। But you don't need to teach a child how to commit sin. और इसी तरह से हमें बच्चों को भी ये तरबियत देने की जरूरत नहीं होती कि वो ये गुनाह करें। Lying begins to happen naturally. अब जिंदगी जो है वो इसी तरह से गुनाह आलूदा है, Stealing begins to happen naturally. और ये सब कुछ इसी तरह से कुदरती तौर पर होता है, Fighting begins to happen naturally. और इसी तरह से ये सब कुछ होता चला जाता है। That is because sin is our nature. और गुनाह जो है वो हमारी फितरत में है, We are carrying a burden and a load of sin all around us. और हम गुनाह से भरी हुई जिंदगी जो है वो लिए फिरते हैं। Therefore, the most unfortunate side is that we can't even cleanse ourselves. अब बदकिस्मती ये है कि हम अपने आप को धो नहीं सकते। No matter how hard you try, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कोशिशें आपने की, you cannot cleanse yourself from your sins. आप अपने आप को गुनाहों से धो नहीं सकते। No matter how much you try, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आपने कोशिश की हो, you will never be able to wash yourself from your sins. आप अपने आप से अपने गुनाह से धो नहीं सकते। Even if you bath 7 times a day, आप कभी भी आपने बहुत सारी कोशिश की भी क्यों ना हो, sin will still be there. गुनाह फिर भी वही रहता है। You cannot cleanse yourself. आप अपने आप को धो नहीं सकते। That is why you need a shepherd. लिहाजा इसलिए आपको एक चौपान की जरूरत When है। the Bible says the Lord is my shepherd, बाइबल फरमाती है कि वो मेरा चौपान है, that is because the Lord will come into your life और इसलिए कि वो हमेशा की जिंदगी को लेकर आता and है, will wash you from all your sins. और वही आपके गुनाहों से आपको धोता है, And He will make you whole again. और वो आपको एक पाक जिंदगी देता And है, you will become free from sin. और फिर आप गुनाह से आजाद हो जाते हैं, And you will become white as snow. और फिर इस तरह से बर्फ की गोली आप साफ हो जाते हैं, And you will become righteous. और फिर उसके बाद आप रास्तबाज हो गए, Because the shepherd has washed you. क्योंकि खुदा चौपान ने आपको ढूंढ लिया, Because the shepherd has cleansed you. क्योंकि चौपान ने आपको धोया है। That is why you need a shepherd. लिहाजा इसीलिए आपको चौपान की जरूरत है। Shout hallelujah. और से कहिए हालेलुया। Shout hallelujah. Number 3 reason why you need a shepherd. नंबर 3 जो बात इसके ताल्लुक से है वो ये है, As a sheep, भेड़ होते हुए the sheep has no natural sense of self-defense. और भेड़ को
को जो है वो खुद अपने तौर पर दफा नहीं कर सकती, अपने आप को बचा नहीं सकती। The sheep cannot defend itself. और भेड़ जो है वो अपना बचाव नहीं कर सकती। Almost every animal can fight. और बहुत सारे जानवर जो है वो आ सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। The goat can fight. और बकरी जो है वो भी लड़ सकती है उससे। Before you find his trouble, he's ready to fight. और वो आगे आकर इस तरह से बिल्कुल तैयार होकर उससे लड़ सकती है। He's using his horns and he's ready to fight. और बकरी जो है वो आकर इस तरह से अपने सींगों के साथ में The lion is a fighter already. और इस तरह से ये जंग जो है लड़ाई हो सकती है। He can tear and destroy. और वो अपने आप को उस जंग से नहीं बचा सकती। The tiger can fight. और इसी तरह से चीता जो है वो भी हमला कर सकता है। Even little fowl can fight. अगर चीता छोटा भी क्यों ना हो वो भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। Almost every animal has a kind of self-defense. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। Naturally, there is an inbuilt self-defense in every animal. फितरती तौर पर ये सलाहियत उनके अंदर रखी जाती है। No matter how big you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं। when you try to attack them, और जब आप बचाने की कोशिश भी करें, even if they were wrong, अगर से किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत भी किया हो, before they know, they will try to fight you first. लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, आपके मुखालिफ जो है आया हुआ वो आप पर हमला करेगा। But the sheep लेकिन भेड़ has no ability to fight. उसके अंदर काबिलियत नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। The sheep cannot fight. अब भेड़ जो है वो लड़ नहीं सकती, It cannot defend itself. वो अपने आप को खुद नहीं बचा सकती। When the enemy comes, जब दुश्मन आता है when the leopard comes, और इसी तरह से जंग शुरू होती है, when the wolf comes और इसी तरह से जब दुश्मन आता है and tries to eat up the sheep, और वो कोशिश करता है कि भेड़ पर हमला करे, it can't fight. लेकिन भेड़ जो है वो कुछ नहीं कर सकती। It can't defend itself. वो अपने आप को बचाव नहीं कर सकती। It will try to run away from the enemy. अगरचे वो फिर भी इधर उधर भागती फिरे, The sheep can't run fast enough. लेकिन फिर भी उससे वो बच नहीं सकती। Very soon the enemy will catch him और फिर इसी तरह से फिर दुश्मन जो है वो उसको पकड़ लेता है and will tear him up and eat him up. और फिर उसको बांध कर उसको मारता है। So there is no way the sheep can defend itself. लिहाजा भेड़ जो है वो अपना बचाव खुद नहीं कर सकती। The only defense the sheep has अब सिर्फ एक ही दफा है और एक ही बचाव है उस भेड़ के पास is the shepherd. कि वो जुबान को ले ले। When the enemy tries to come, जब दुश्मन आता है, when the lion tries to come, जब इसी तरह से और चीजें आती हैं, when the bear tries to come, और जब इस तरह से दुश्मन उसकी तरफ बढ़ता है, when the wolf tries to eat up the sheep, और जब इस तरह से वो आता है उसको खाने की कोशिश करते हैं, the shepherd keeps the sheep behind तो फिर जुबान उसको बचा लेता है and he goes in front of the lion. और फिर भेड़ के आगे जुबान खुद आ जाता है Or whatever enemy there is, और जो कुछ भी वहां पर होता है and he fights the lion और फिर वो जंग खुद करता है and he kills the enemy और फिर उसके बाद उस दुश्मन को भगाता है and he defends the sheep. और फिर उस तरह से उस भेड़ का बचाव हो जाता है। That is what David was doing और यही कुछ है जो वह कर रही है। when he killed the lion and the bear. और इसी तरह से जब वो वहां उस मुकाम पर होती है, He was keeping the sheep जब वो जुबान उसको बचाता है and the enemy wanted to destroy the sheep और दुश्मन जो है वो उसको मारने की कोशिश करता है, and the sheep was defenseless. लेकिन भेड़ जो है वो अपने बचाव के में बेबस है। And David as a shepherd came and fought and destroyed and killed the lion and the bear. और इसी तरह से फिर जुबान आता है और बचाता है और तमाम उन जानवरों को, शेरों को, चीतों को, सबको मार भगाता है। I have come to announce to you this morning, आज सुबह मैं इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूँ, as a sheep, भेड़ होते हुए you cannot defend yourself. आप अपने आप को खुद नहीं बचा सकते। No matter how hard you try, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिशें आपने you की may go to the heavens, और इसके कोशिश की होगी आप आसमान पर चले you जाए may go into occultism, और इसी तरह से और अच्छी चीजों को ले you सकते may go to the native doctors, और इसी
में जरूरत है। That is why you need the Lord in your life इसीलिए आपको खुदा की अपनी जिंदगी में जरूरत है to be your defense, ताकि आपका वो बचाव बन to जाए, fight your battles, ताकि आपकी वो जंग लड़े। so that when the devil comes after you, जब दुश्मन आपकी तरफ बढ़े the shepherd will say, yes, hold on, keep quiet. और फिर जल्दी से जवान आगे आकर आपको बचा ले। And he will face the devil, और जब आप दुश्मन का सामना and करें he will destroy the devil for your sake. और आप अपने आप से खुद नहीं कुछ कर सकते, That is why you need him in your life लिहाजा इसी बात की जरूरत आपको आपकी जिंदगी में as your shepherd. और जापान की। Hallelujah. The Lord is my shepherd. खुदावन मेरा चौपान है, You are the sheep. आप उसकी भेड़े हैं, We are the sheep. हम सब उसकी भेड़े We हैं। cannot help ourselves. हम अपने आप को खुद नहीं बचा We सकते, need the shepherd in our lives. हमें चौपान की अपनी जिंदगी में जरूरत है He needs to lead us the way. ताकि वो हमारी रहनुमाई कर He सके, needs to show us the way. वो हमें उस राह की निशानदेही कर He सके, needs to wash us from our sin. ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें धो सके, He needs to defend us from the enemies. ताकि वो हमें दुश्मन से बचा सके। You also need the shepherd for another reason. एक और बात की जिस ताल्लुक से आपको चौपान की जरूरत है, When the sheep is hungry, जब भेड़ जो है वो भूखी होती है the sheep can't even feed itself. और भेड़ जो है वो अपने आप को खुद खुराक अपने आप में अपना पेट खुद नहीं भर सकती, I mean, the sheep doesn't know where the food is. लेकिन उसको ये भी पता नहीं, अगरचे उसको पता हो कि खुराक यहाँ पर है, Of course, since he doesn't have the direction, अगरचे उसके पास रहनुमाई नहीं है there is no way he can go to the place where the pasture is. और उसको ये भी पता नहीं है कि हरी हरी चरागाह कहाँ पर है, So without the shepherd, और ये सब कुछ चौपान है the sheep will die of hunger और उसकी जो भूख को है वो खत्म कर सकता है। because he will not be able to go to the place where he will graze. अगरचे आपको पता भी हो कि खुराक कहाँ पर है, But when the shepherd comes लेकिन जब चौपान आता है and the sheep is hungry, और जब वो भूखी होती है the shepherd will lead the sheep और फिर चौपान उसकी रहनुमाई करता है into green pastures और फिर उसको हरी हरी चरागाहों में ले and will जाता है just allow the sheep to feed. और फिर उसको मौका मिलता है कि भेड़ जो है वो अपनी खुराक And he will watch to defend it to make sure nothing happens to him. और फिर वो देखता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ वहां पर And he है will wait patiently और उसके बाद वो उसको खुराक मुहैया as करता the sheep gradually feeds and graze. है और जब उस खुराक को उस हरी हरी चरागाह को वो खाती है After the green pastures, और उन हरी हरी चरागाहों पर होती है, after he has eaten all the food, जब वो सारी खुराक को वहां से खा the लेती है shepherd will go lead the sheep to the still waters. और फिर उसके बाद उसे वो चश्मों की तरफ लेकर बढ़ता है And he will begin to drink. और फिर उसके बाद उन चश्मों से वो पीती है And the shepherd will keep watch और फिर जवाहा जो है वो देखता रहता to है make sure no lion comes to kill him. और वो देखता रहता है कि कोई दुश्मन आकर इस पर हमला न To make करे, sure no animal comes to fight him. इस यकीन दहानी के साथ कि कोई इस भेड़ के साथ ना लड़े आकर। And the sheep will drink water. और फिर उसके बाद वो भेड़ जो है पानी And will पीती है drink water और वो पीती है until he's satisfied. जब तक वो मुतमईन ना हो जाए And then the shepherd will take him back. और फिर उसके बाद चरवाहा उसको वहां से ले जाता है। Without the shepherd, the sheep will die in hunger. और इसी तरह से वो ये भी हो सकता है कि चरवाहा चौपान जानता हो वहां पर वो मर भी सकती है Without the shepherd, the sheep will die of thirst. और इसी तरह से उस भरोसे पर एतमाद पर वो वहां पर होती है। No wonder David said, और जब यहाँ पर दाऊद ये कहता the है Lord is my shepherd. कि खुदावंद मेरा चौपान है, I shall not want. मुझे किसी बात की कोई कमी ना होगी He maketh me lie down in green pastures. और वो मुझे हरी हरी का चरागाहों पर ले He जाता है, leadeth me beside the still waters. राहत के चश्मों के पास ले जाता है, He restored my soul. वो मेरी जान को बहाल करता है। God wants to lead you to the still waters this morning. और आज खुदावंद आपको इसी तरह की रहनुमाई देना चाहता है God wants to lead you to green pastures.
जब मैं इख्तिताम पर आता हूँ, one more thing that the sheep, एक और बात भेड़ के ताल्लुक से, why the sheep needs the shepherd. अब क्यों जो है वो भेड़ जो है वो चरवाहे से दूर रहती है या इधर उधर होती है। At the beginning I said the sheep cannot direct itself. मैंने शुरू में आपको बताया कि भेड़ जो है वो खुद अपनी जगह को नहीं ढूंढ सकती, So that means the sheep can easily get lost. लिहाजा भेड़ जो है वो आसानी से खो सकती है। The sheep will always get lost any day, any time. भेड़ जो है वो किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी मुकाम पर खो सकती है। And when the sheep get lost, और जब भेड़ खो जाती है, the most unfortunate thing और जो सबसे बड़ी और अहम बात है, is that the sheep cannot even find its way back home. और उसके ताल्लुक से यह है कि जहां से वो अपना सफर शुरू किया था, फिर वहां पर पहुंच भी नहीं पाती। When the sheep gets lost on the way, जब आधे रास्ते में खो जाए, the sheep cannot find its way back home. तो जहां से वो चली थी, जिस घर से चली थी, उस घर तक भी नहीं पहुंच पाती। Even though that was where he was living, और अच्छे वो ये जानती है कि वो कहां पर रहती थी और कहां से चली थी, even though that was where he took off from. और उस जगह से वो जानती है कि कहां से उसने अपने सफर का आगाज किया। Yet when he gets lost out there, लेकिन जब वो आधे रास्ते में जाकर खो जाती है, the sheep cannot find its way back home. तो फिर वो अपने घर को भी वापस नहीं लौट सकती। That is why the sheep needs a shepherd. लिहाजा इसीलिए जवान की उसको जरूरत है। When the sheep get lost, और जब वो खो जाती है, the shepherd goes looking for him. और फिर उसके बाद जवान निकलता है और ढूंढता है, The shepherd will search for him. और फिर वो भेड़ को ढूंढता है इस तरह He से, will look everywhere for the sheep. और फिर वो इस तरह से भेड़ को इधर उधर ढूंढता He फिरता will है, call him by all the names. और फिर वो इस तरह से इधर उधर निगाह डालता है, He will search everywhere where he should until he finds the sheep. और फिर वो इस बात का एहसास गहरे तौर पर रखते हुए इसको ढूंढता है। And when the shepherd finds the sheep, और जब जवान को वो भेड़ मिल जाती है, he doesn't even allow the sheep to walk back home. और फिर भी वो जो है मौका उसको मिलता है कि वो फिर जा सके, Because he knows the sheep has been lost for some time. और उसको ये मालूम होता है कि ये खो गई है अपने असल मुकाम से। Because he knows that the sheep is tired and hungry and thirsty. और इसी तरह से वो जानता है कि अब ये बेबस है और इसको मालूम नहीं है, Because he knows the way back home is very long. The sheep will not be able to walk back home. और जवान जानता है कि इसको कहां पर जाना है, लेकिन भेड़ नहीं जानती कि वो कैसे पहुंचे। So when the shepherd finds the sheep, और जब चरवाहा और जवान उसको ढूंढ लेता है, he carries the sheep up और फिर उसके बाद उसकी रहनुमाई होती है, and he puts him on his neck और फिर अपने कंधे पर उसको रख लेता है, and he carries him back home. और फिर उसके बाद भेड़ को कंधे पर बिठा के And the आगे sheep is लौटता है, resting. और फिर वहां पर वो आराम पाती है, The sheep is resting on the shoulder of the shepherd और इसी तरह से वो कंधे पर उठाए फिरता है until he takes him back home. उस वक्त तक जब तक वो घर ना पहुंच जाए। The Bible says, बाइबल फरमाती है, we are like sheep have gone astray. और कलाम फरमाता है कि हम सब उन भेड़ों की मानद हैं कि जो खो गई हैं। You have been lost in the presence of God. आप खुदा की हजूरी से खोए हुए लोग हैं, You have gone astray. You have wandered away from God. और आपको मालूम नहीं है कि आप किधर चले गए हैं। There is no way you can find yourself back to God's address. एक ही रास्ता है कि आप वापस उस जगह पर पहुंच पाए। You have wandered so far away that you are so tired and hungry and you can't even walk back home. और भूखे होते हुए, परेशान होते हुए, पता नहीं है कि अपने घर को कैसे लौटे, You don't even know the address to go back to your father. और आपको मालूम नहीं है कि वहां तक कैसे पहुंच पाए। But when the Lord is your shepherd, लेकिन जब खुदा आपका जवान है, He begins to look for you. वो आपको ढूंढता फिरता है, The Lord has been searching for you. और खुदा जो है वो आपकी तलाश में है। That is why God sent the shepherd. लिहाजा इसीलिए खुदा ने एक चरवाहे को भेजा, And when the shepherd finds you, और जब चरवाहा आपको ढूंढ लेता He है, will carry you on His shoulders. वो अपने कांधे पर उठा लेता है, He will carry you back home to God. और फिर वो खुदा तक आपको लेकर जाता है, And you will return back to Jesus. और फिर आप यीशु मसीह के वसीला से पहुंचते हैं। And the Bible, Jesus says, I am the good shepherd. और इसीलिए तो उसने कहा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, Jesus is the shepherd you have been looking for. और वही यीशु है जो चरवाहा जिसकी आपको जरूरत है और ढूंढ रहे हैं, Jesus is the shepherd you need in your life. और उस राह जिसकी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है। For we all have wandered away from God. और हम खुदा से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, Like sheep, we are all lost. भेड़ों की तरह हम खो चुके हैं। But why we are still lost? लेकिन फिर भी हम क्यों अब तक इस जगह पर है, मुकाम पर है? God put
put our sin and iniquity upon Jesus. लेकिन याद रखिए कि खुदा ने आपके गुनाहों को यीशु के ऊपर लाद दिया Jesus paid the price for our sins. और उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। And then he went inside for us. और जब यीशु ढूंढता है And as you allow God to find you, ताकि वो आपको तलाश कर सके, when Jesus becomes your shepherd, जब यीशु आपका चरवाहा बनता है, when you are the sheep, allow him to find you. जब आप भेड़ होते हुए ये मौका देते हैं कि वो आपको ढूंढे, When he finds you, जब वो आपको तलाश करे, because he's the good shepherd, वो फिर आपका चरवाहा बन he will जाता not है। allow you to walk back to God on your own. आप अपने आप से खुदा तक नहीं पहुंच पाते, He will carry you on his वो shoulder. अपने कंधे पर आपको उठा लेता है, He will allow you to have rest. वो आपको आराम देता है And he will take you back to God. और फिर उसके बाद खुदा तक आपको And he will carry you back home. और फिर घर को लौट आते हैं। That is why he said, come unto me, all you that labor and are heavy laden, I will give you rest. इसीलिए वो फरमाता है, बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। This morning, आज सो the shepherd, चरवाहा the Lord Jesus, यीशु मसीह wants to find you. आपके तलाश में है, He has been searching for you. वो आपको ढूंढ रहा है। He wants to find you this morning. आज आप उसको मिल जाइए, And he wants to carry you back to God. वो अपने कंधे पर उठाएगा और खुदा तक लेकर जाएगा। This morning, आज सो the shepherd चरवाहा wants to wash you from every sin. वो आपको आज आपके हर एक गुनाह से आपको He wants to cleanse you and make you whole. वो आपको पाक और साफ करना चाहता This है। morning, आज सो the shepherd, चरवाहा the Lord Jesus, जो यीशु मसीह है, he wants to defend you वो आपका बचाव बनना चाहता है from every work of Satan, हर किस्म के दुश्मन से और इसी from every works of the powers of darkness. हर किस्म की तारीकी की कुव्वतों से। This morning, आज सो the shepherd, चरवाहा the Lord Jesus, यीशु मसीह he wants to lead you to green pastures. वो आपको रहनुमाई करेगा कि आप हरी He wants जगहों पर to, जाएं he wants to give you water to drink and food to eat. और वो आपको खुराक देगा, आपको सैर करेगा He wants to nourish your soul. और वो आपकी जान को बहाल करेगा। And most importantly, this morning, आज सो the shepherd wants to direct your life. और चरवाहा आपकी जिंदगी की रहनुमाई करना चाहता है, He wants to lead you in the path of life. वो जिंदगी की राहों पर लेकर जाना चाहता You है। don't have to travel through this life on your own. आपको अपने आप से किसी कोई कोशिश करने की जरूरत All you need to do is to discover the shepherd सिर्फ करना ये है कि चरवाहे को ढूंढ लीजिए and follow the shepherd और उसके पीछे पीछे चलिए। every step of the way, हर एक उस मुकाम पर जो उसने every आए, day of your life, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के and he will lead you to God's presence, और वो खुदा बाप की हसूरी तक लेकर and he will lead you to heaven, और वो आपको आसमान पर लेकर he जाए, will lead you to salvation, वो आपको नजात तक लेकर जाए he will lead you to forgiveness, और वो आपको माफी तक लेकर he जाए, will lead you to healing. वो आपको शिफा तक लेकर जाएगा। That is why God wants to be your shepherd. इसीलिए तो वो आपका चरवाहा बनना चाहता That है, is why Jesus wants to be your shepherd. इसीलिए तो यीशु आपका चरवाहा बनना चाहता That is why you have to be the sheep है। लिहाजा उसके लिए आपको भेड़ होने की so that he can become your shepherd. ताकि वो आपका चरवाहा और The चौपान। Lord is my shepherd. खुदावन मेरा चौपान है, I shall not want. मुझे कमी ना होगी। If you are here this morning आज सुबह अगर मेरी आवाज सुनते हैं, and you want to make the Lord your shepherd, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका चरवाहा और चौपान बने, you want to say, Jesus, be the shepherd of my soul. अगर यीशु से कहना चाहते हैं कि वो मेरी जान का चरवाहा बन जाए Lead me through the path of life. और मुझे उस जिंदगी की राह पर लेकर चले, Lead me back home to God. मुझे उस घर की तरफ लौट कर चले जो खुदा का है। I cannot find my address back home, मैं खुद से अपने घर की तलाश नहीं कर सकता, but I know that you know the way. लेकिन तू जानता है कि रास्ता कौन सा है। As I follow you, I know you will show me the way. और जब मैं तेरी पैरवी करता हूँ, तेरे पीछे चलता हूँ, तो दिखा मुझे। If you want to have a relationship with Jesus this morning, अगर आज से खुदा यीशु के साथ आपका ताल्लुक है, as your shepherd, तो फिर उस चरवाहे से कहिए, not just to know him as Jesus, सिर्फ यीशु होने की हैसियत से ना जानिए not just as someone you have been hearing, और किसी हैसियत के मुकाम पर उसको ना जानिए सिर्फ, that you want to have a personal relationship with him. लेकिन इस तौर पर जाइए कि शख्सी एक ताल्लुक जो है वो आपका उसके साथ, Where he becomes your shepherd, जहां पर आपको वो चरवाहा नजर आए and where he will be involved in your life every day
बरोज रोजमर्रा की जिंदगी में वो आपका चरवाहा ही बना रहे। If that is what you want to do, I want you to stand on your feet as we pray this morning. अगर ये सब कुछ जो मैं बयान कर रहा था, अगर आप चाहते हैं कि वो चरवाहा आपका बन जाए, तो अपने कदमों पर आप खड़े हो I सकते want you to stand on your feet if you want to say, Jesus, be my shepherd. अगर आप ये चाहते हैं कि आज के बाद आप उसे ये कहें कि तू मेरा चरवाहा हो, I want you to be my shepherd. तू मेरा चौपान बन जाए। I am the sheep, I cannot help myself. मैं वो भेड़ हूँ जो अपने आप से खुद की मदद नहीं कर सकती। If you want to say that prayer, stand on your feet. अगर आप चाहते हैं कि ये दुआ आपके लिए हो और आप करना चाहते हैं, तो आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। As a sheep, if you have wandered away and you want Jesus to find you again and bring you back to God, stand on your feet as we pray together. अगर भेड़ होते हुए आप इस बात का एहसास करते हैं कि आप खो गए और वापस खुदा बाप के घर में लौटना चाहते हैं, हजूरी में आना चाहते हैं, तो खड़े हो जाइए। And Jesus will give you rest this morning. Stand on your feet and let us pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Makorobo sandalabashas. Lembo kuskereyabo sendelabo. Libo kudu sinduriyaba shindulaka. Batolesa. If you want this prayer, I want you to lift your right hand wherever you are. मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। You want the Lord to be your shepherd indeed. आपने ये मोहब्बत रखी है कि वो आपका चरवाहा बने। You want to be the sheep so that he will be your shepherd. और आप भेड़ बने और वो आपका चरवाहा बने। Say this prayer after me. मेरे पीछे ये दुआ कीजिएगा, सब जो खड़े हैं। Lord Jesus, आए यीशु, I have been lost as a sheep. भेड़ होते हुए मैं खो गई थी। I have wandered away from you. मैं तुझसे बहुत दूर निकल गई थी। But this morning, लेकिन आज सुबह I have heard your word. मैंने तेरी आवाज को सुना है। And I want to return back home. मैं वापस घर को लौटना चाहती हूँ। I want you to be my shepherd. मैं चाहती हूँ कि तू मेरा चौपान बन जाए। I am helpless and defenseless. मैं बेबस हूँ और मैं अपना बचाव नहीं कर सकती। Be my defense this morning. आज सुबह तू मेरा बचाव बन जा। Wash me from every sin and death in my life. जो कोई भी गुनाह मेरी जिंदगी में उसको धो दे। I begin a new relationship with you. मैं अपने एक नए रिश्ते का आगाज तुझसे करता हूँ। As my shepherd. और चरवाहा होते हुए। And I thank you because you will lead me. और मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि अब तू मेरी रहनुमाई करेगा। Through the journey of this life. और खुदा इस जिंदगी के सफर पर Thank you for being my shepherd. खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरा चौपान बनने जाने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में ये दुआ मैं मांग लेता हूँ। Now let me pray for you. अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से। Thank you, Father, for your word. आए खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए। Thank you for everyone that has heard the sound of my voice. खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितने मेरी आवाज को सुनते हैं। Thank you because you have found many lost sheep this morning. खुदा देख आज एक ताल्लुक तेरे साथ पैदा हुआ है। Lord, I ask that you bring them back home. खुदा मेरी दुआ है कि तेरे घर की तरफ ये लौट आए। Place them on your shoulder and bring them back home. खुदा इनको ले आ घर की तरफ। That they will have rest in your presence. ताकि तेरी हजूरी में ये आराम पाए। Wash away every sin that has made them dead. हर एक गुनाह को खुदा धो दे। Take away every load of sin in their lives. खुदा किसी किस्म का भी कोई गुनाह इनकी जिंदगी में उसको ले ले। Be their defense this morning. खुदा आज सुबह खुद इनका बचाव बन। Lead them to green pastures. खुदा इनकी रहनुमाई कर ताकि ये हरी हरी चरागाहों पर Nourish their soul, oh God. खुदा इनके जान को खुदा सेर कर। Give them eternal life this moment. आज सुबह इनको हमेशा की जिंदगी दे। Thank you, Father, because you have done it.
खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि ये तूने सब कुछ कर दिया है। Thank you, Jesus, because you have become the shepherd of their life. यीशु तेरा शुक्र हो कि तू इनकी जिंदगियों का चरवाहा बन गया, And because you are the good shepherd, क्योंकि तू ही अच्छा चौपान है। none of these ones will ever get lost. और खुदा अब कभी भी हम अपनी जिंदगी में नहीं खोएंगे, Your hand will always lead them. और खुदा तेरा कभी हाथ हमारी रहनुमाई You will always direct their path. तू हमेशा खुदा में इनकी राह की रहनुमाई करेगा, You will always give them the victory. और तू हमेशा इनको फतह देगा। Satan, I take authority over you now. ओ आए शैतान तेरा इख्तियार खत्म हुआ। Every serpent and every lion and every wolf that is coming against them, हर एक झूठ, हर एक खुदा ऐसा हमला सबका खात्मा हुआ। every evil power that is against you, हर किस्म की ऐसी तारीकी की कुव्वतें और बदी की कुव्वतें जो तुम्हारे खिलाफ थी, every powers of darkness that has been attacking you, हर किस्म की तारीकी कुव्वतें जो हमला कर रही थी, I take authority over them now. मैं आज उन सब पर फतह पाता हूँ। I take authority over every sickness in your body. मैं इख्तियार उन तमाम बीमारियों पर लेता हूँ। In the name of Jesus, I bind the powers of darkness. यीशु के नाम से मैं तारीकी की कुव्वतों को बांधता हूँ। Satan, be bound in the name of Jesus. अरे शैतान तो यीशु मसीह के नाम से बांध दिया। Satan, be bound in their lives in the name of Jesus. यीशु के नाम से शैतान आपकी जिंदगी में बांध दिया। Satan, I command you to lose your hold in the name of अरे Jesus. शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू इनकी जिंदगियों को छोड़ दे, I set them free by the power of the Holy Ghost. और रूह पाक की कुव्वत और कुदरत से कहता हूँ कि तुम आजाद। I command deliverance upon your life. मैं चाहता हूँ कि इस रिहाई आपकी जिंदगियों में आए, I command healing upon your bodies. और मैं शिफा को कहता हूँ कि वो आए आपकी I जिंदगी में। command every pain to go in the name of मैं Jesus. हर किस्म की दर्द को हुक्म देता हूँ कि आपकी जिंदगी में से जाए। I command every sickness to go in the name of Jesus. मैं हर किस्म की बीमारी को हुक्म देता हूँ कि वो जाए। I release the peace of God upon your life. मैं खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगियों पर लेता हूँ। I release the blessings of God upon your life. मैं खुदा की बरकत आपकी जिंदगियों पर लेता हूँ, And I decree from this moment you are victorious. और मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद आपकी जिंदगी फतहमंद जिंदगी है। You are victorious in every area of your life. आप अपनी जिंदगी में फतहमंद जिंदगी बसर करने वाले हैं। And no power of the enemy can touch you again. आप दुश्मन की कोई ताकत आपको खींच नहीं सकती, Because now the Lord is your shepherd. क्योंकि आपसे और आज से खुदा आपका चौपान है। And you shall not want again. अब आपको किसी चीज की कोई कमी ना हो। So shall it be in the name of Jesus. ये सब कुछ यीशु के नाम में हो जाए। So shall it be in the name of ये Jesus. सब कुछ यीशु के नाम में हो। Come on, lift your hands and begin to thank God for your miracles. आइए आज शुक्रगुजारी अपने हाथों को उठाकर करना शुरू Begin to कीजिए। thank God for your healing presence now. आप अपनी शिफा के लिए शुक्र करना शुरू कीजिए, Begin to thank God for being your shepherd now. और शुक्र करना शुरू कीजिए कि वो आपका चौपान बना, Begin to thank God for being your defense now. और शुक्र कीजिए कि वो आपका बचाव बन गया, Begin to thank God for being your healer now. और शुक्र कीजिए कि वो आपका शाफी बना, Begin to thank God for in the presence of His Holy Spirit now. और उसके रूह पाक की हजूरी के लिए शुक्र कीजिए, Thank God for giving you all the victories that you need now. और उस फतह की जिस फतह की आपको जरूरत थी आज In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And everybody says amen. हर शख्स कहेगा आमीन, Amen. आमीन। I want you to know that miracles were happening even as I was preaching the word. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदात जो है वो होने शुरू हुए। God was touching a lot of you this morning. आज खुदा सुबह बहुत सारों को छू रहा है, There were yokes of darkness that were being broken. और तारीकी का जुआ जो है वो टूट चुका है। Because as I was preaching the word, और जब हम ये कलाम सुना रहे थे, that lion, that serpent, that animal that has been fighting you as a sheep, और वो शेर, वो अस्तहा, जो कोई भी चीज थी जो आपके खिलाफ लड़ रही थी, the power of the world, और खुदा के कलाम की कुदरत से, because the world is Jesus, क्योंकि खुदा जो है वो कलाम है, and because Jesus is the shepherd, और यीशु ही चरवाहा है, the power of that world began to break the powers of the enemy over your life. और उसी कलाम की कुदरत ने आपके दुश्मन का खात्मा किया है। I saw enemies and chains and devils living your life. मैंने देखा कि आपके जिंदगी से दुश्मन का खात्मा हुआ। In the spirit realm, miracles have already happened in your life.
life. और आपकी जिंदगी में मुआजिज़ात हुए। And I want you to know that you will begin to see manifestations of the promises of God in your life. और खुदा के वादे जो हैं जिसमें आप बहुत पहले परेशान थे, अब पूरे हुए। If you believe it, shout hallelujah! अगर आप सब बातों का ईमान रखते हैं तो जोर से कहिए हालेलुया। Shout hallelujah! And I want you to know that when God does something in your life, don't keep it to yourself. मैं ये बताना चाहता हूँ और आप ये जान लिए जब खुदा ये काम करता है You can always come to the pastors and let them know the testimony of what God has done, of that healing, of that deliverance that you sense in your spirit. और मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में आपके रुझान बदन में जो मौजूदा हुआ है उसकी गवाही आप जरूर दीजिएगा। God bless you very good. खुदा आप सबको बड़ी बरकत